Hello my dear students, this is Neeraj Paul from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. I welcome you to online classes. So dear students, today I am going to explain about drop cap effect. Okay, so in this video lecture, we will know how to insert drop cap effect in your document. So let us start. First of all, you have to open your document where you want to insert drop cap effect. Okay students, so first of all you have to click on the insert tab, and then after you have to click on the MS Office Word 2007, and here you have to open any document. Okay students, you can see here I have opened a new document here. So we have to insert drop cap effect in our document. So first of all, we have to click on the insert tab. Here you can see this is the menu bar, this is home tab, this is insert tab, and this is page layout tab, this is references tab, this is mailing tab, and this is review tab, and this is view tab. Okay students, so first of all you have to click on the insert tab. Okay, now the insert menu has gone open. You can see here this is the pages group, this is the tables group, and this is the illustration group. Here you can see pictures, clip art, shapes, smart art, chart. This is the links group, and this is the header and footer group, and this is the text group. So in the step second, you have to click on the drop cap button from the text group. So this is the text group. Here you can see this is the drop cap option. You have to click here. Now you can see here three options. First is none, second is drop cap, and third is in margin. Okay, so you have to just click over dropped. Okay students, now you can see your first letter of your paragraph has gone enlarged. Okay, this is the drop cap effect. Okay students, if you want to remove this effect, then again you have to click on the insert tab, and then after you have to bring your mouse pointer in the text group, and then again you have to click on the drop cap, and you have to select none option. So look students, your drop cap effect has gone removed from here. Okay students, again if you want to insert drop cap effect, then you have to click on the insert tab, and then after you have to bring your mouse pointer in the text group, and here you can see drop cap option. You have to click over it, and then after you have to click on the draft. Okay, your drop cap effect has gone insert in your document area. So students, this is the process to insert drop cap effect in your document. Okay, now the next topic is mail merge. Okay students, as you all know, there are times when you need to send a document to numerous recipients with identical information except for some details like name, address, and so on. The mail merge features is used to send a document to multiple recipients at a time. It is used while sending similar format letter, circular, or invitation to a large group of people. Okay students, the process of mail merge involves three steps. First is creating a main document, second is creating a data source, and third is merging main document and data source. So first of all,
we will learn how to create main documents. When you want to mail merge, so first of all you have to create a main document, then after you have to create a data source, and then after you have to merge main document and data source. Okay students, so your first topic is creating the main document. So dear students, create a new document and type the letter for the main document and save it. First of all you have to type your letter and then after you have to save it. Okay students, suppose that this is my letter. Okay, now suppose I am going to type a new letter students. Okay, and I will show you how you can insert mail merge in your MS Word. Okay students, so look at this video. इस तरह से दिख रहा है। मेल मर्ज ऑप्शन का बेसिकली मीन ये होता है कि आप कोई लेटर है, कोई ईमेल है या फिर किसी तरह के कोई स्टिकर, लेबल वगैरह एनवेलप बनाना या फिर कोई एनवेलप आप बनाना चाहते हो बहुत सारी क्वांटिटी में, तो वो आप आसानी से और बहुत ही जल्दी से बना सकते हो बिना कोई ज्यादा मेहनत किए। तो इसलिए अपन कह सकते हैं मेल मर्ज का अपन यूज ले सकते हैं। तो मेल मर्ज को शुरू करने से पहले अपन कह सकते हैं इसके मेल मर्ज के 6 स्टेप में आपको पूरा कर दूंगा। हाँ फ्रेंड्स, हम मेल मर्ज को सिर्फ 6 स्टेप के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 6 स्टेप के अंदर पूरा मेल मर्ज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेल मर्ज को। तो सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट मेल मर्ज। जैसे ही आप स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर जाके क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ लिस्ट मिल जाएगी कि आपको क्या बनाना है, जैसे लेटर, ईमेल, एनवेलप, लेबल, डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ लेटर। जैसे मैंने लेटर के ऊपर क्लिक किया तो हमारा नेक्स्ट जो काम होता है वो आपको लेटर को टाइप करना होता है आपके पेज के ऊपर, जिस लेटर को आपको बहुत सारे पर्सन को भेजना होता है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 बार एंटर कर दिया और फिर मैं नीचे लिखता हूँ, आपके लेटर को लिखना शुरू करता हूँ। मैंने लिखा सब्जेक्ट जैसे मैंने लिख दिया न्यू ईयर विशेष 2019, एंटर किया मैंने। इसके बाद मैंने लिखा जैसे डियर सर स्लैश मैम, एंटर किया, टैब प्रेस किया और आगे जो मेरा मैटर था, जो मेरा मटेरियल था लेटर का, वो मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। जैसे कि अपन कुछ भी सैंपल टाइप कर रहे हैं, नॉर्मली लिखकर एंटर कर दिया, टैब प्रेस किया और लास्ट में लिख दिया थैंक यू। तो जैसा कि फ्रेंड्स, और लास्ट में हमने लिखा फ्रॉम टेक डिलाइट। तो जैसे कि हमने एक सैंपल लेटर टाइप कर लिया, तो अब आप सोच रहे होंगे मैंने 2-3 बार ऊपर एंटर करके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर आपको उस पर्सन का नाम आएगा जिस पर्सन को आपको भेजना है। अगर आपको एक पर्सन को भेजना होता तो मैं सिंपल लिख देता, लेकिन मेरे को बहुत सारे लोगों को ये लेटर भेजना है जिसका मटेरियल सेम है लेकिन उनके नाम पते सबके अलग अलग है, तो इसलिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। तो मैंने इसको यहाँ पे एंटर तो रख दिया। अब यहाँ पे जो नाम आने वाले हैं वो मेल मर्ज मेरा ऑटोमेटिकली इंसर्ट करेगा, मैं खुद नहीं करूंगा। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा पूरा हो गया। फर्स्ट स्टेप था स्टार्ट मेल मर्ज के ऊपर क्लिक करके आपको उस ऑप्शन को चूज करना है जिसको आपको बनाना है। सेकंड मेरा काम है सेलेक्ट रिसिपेंट। जो मेरा सेकंड ऑप्शन है वो है सेलेक्ट रिसिपेंट। सेलेक्ट रिसिपेंट के अंदर 2 ऑप्शन अपने पास मेन होते हैं। पहला होता है टाइप न्यू लिस्ट और सेकंड होता है यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट के अंदर अगर आप उस पर्सन की लिस्ट, उन पर्सन की लिस्ट जिनको आपको लेटर भेजना है, अगर पहली बार टाइप कर रहे हो तो आपको टाइप न्यू लिस्ट लेना पड़ेगा, और अगर पहले से आपने टाइप की भी पड़ी है अपने पास कहीं पे रखी हुई है फाइल के तौर पर, तो हम उसको यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट से भी ले सकते हैं। तो मैं पहली बार टाइप कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे लूंगा टाइप न्यू लिस्ट। जैसे मैंने टाइप न्यू लिस्ट लिया तो मेरे सामने एक बॉक्स ओपन हो गया, न्यू एड्रेस लिस्ट। आपको उन पर्सन की एड्रेस लिस्ट डालनी पड़ेगी जिनको आपको लेटर भेजना है। तो देखो आपके पास बहुत सारी हेडिंग है, फर्स्ट नेम, टाइटल वगैरह, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो मेरे को इतनी सारी डिटेल नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ थोड़ी सी डिटेल चाहिए। तो एक आ रहा है न्यू एंट्री, नई एंट्री लेने के लिए, एंट्री को फाइंड करने के लिए, एंट्री को डिलीट करने के लिए, और एक होता है कस्टमाइज कॉलम। मतलब ये जो कॉलम आपको दिखेंगे आपके टाइटल के रूप में, उनको चेंज करना, कस्टमाइज करना, अपने हिसाब से मॉडिफाई करना। तो मैं इन कॉलम को मॉडिफाई कर लेता हूं। जैसे मैंने कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी ये सारी लिस्ट आपके सामने दिख रही है आपको। तो इसमें से जो मेरे को रिक्वायरमेंट होगा मैं सिर्फ उसी को रखूंगा, बाकी सबको मैं डिलीट कर दूंगा। जैसे टाइटल मेरे को नहीं चाहिए, मैंने टाइटल को डिलीट कर दिया। फर्स्ट नेम चाहिए मेरे को, लास्ट नेम नहीं चाहिए, लास्ट नेम डिलीट कर दिया मैंने। जैसे कंपनी नेम मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है तो कंपनी नेम को भी मैंने हटा दिया। एड्रेस लाइन 2 मेरे को नहीं चाहिए, इसको भी हटा दिया। सिटी चौथा, एड्रेस स्टेट जो हटा दिया, जिप कोड चौथा, डिलीट को कंट्री हटा दिया, होम फोन नंबर हटा दिए, ईमेल एड्रेस हटा दिया। अब मैं इनका नाम थोड़ा मॉडिफाई कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम को मैंने रीनेम किया, रीनेम का साइड में ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करा
और रीनेम की जगह मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम रख दिया। आगे जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट को हटा दिया, सिर्फ नेम रख दिया। एड्रेस लाइन 2 को रीनेम किया और सिर्फ एड्रेस लेता हूं। आगे जो लाइन 1 है उसको हटा दिया, सिटी रख दिया। जिप कोड की जगह अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आए तो मैंने इसको पिन कोड रख दिया। ओके, और वर्क फोन नंबर की जगह मेरे को करना है मोबाइल नंबर, तो मैंने इसके आगे लिख दिया मोबाइल नंबर। ओके कर लो। ये सारी लिस्ट मैंने रेडी कर दी जो मेरे को टाइटल के रूप में चाहिए। जैसे मैं ओके करूंगा तो आपको सिर्फ जो जो आपने नाम डाले सिर्फ आपको वही पूछेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा डिटेल थी वो सारी इसने हटा दी। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, जब भी आप इसमें एड्रेस लिस्ट बना रहे हो तो आपको एंटर का यूज नहीं करना है, ना आपको एरो कीज का यूज करना है ऊपर नीचे जाने के लिए या फिर आगे जाने के लिए। आपको सिर्फ टैब बटन का यूज करना है जो कि आपके कीबोर्ड में दिया हुआ है, टैब बटन। तो चलिए मैं इस लिस्ट को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले मैंने नेम लिखा मोहन, एड्रेस लिखा इसका अपन कह सकते हैं हाउसिंग बोर्ड, सिटी लिखी मैंने इसकी जोधपुर, पिन कोड मैंने कुछ भी लिख दिया और मोबाइल नंबर मैंने कुछ भी सैंपल के रूप में लिख दिए। जैसे मैं टैब प्रेस करूंगा अपने आप वापस वो नीचे आ जाएगा। मैंने लिखा सोहन, सोहन का एड्रेस लिखा मैंने जैसे मंडिया रोड, सिटी लिखी जयपुर, पिन कोड लिख दिया मैंने कुछ भी सैंपल के रूप में और उसके मोबाइल नंबर मैंने डाल दिए। टैब प्रेस करा, वापस नीचे आ गया। फिर मैंने इसके नीचे नाम लिखा किशन, किशन लिखकर मैंने वापस इसका एड्रेस वही लिखा हाउसिंग बोर्ड और मैंने इसका सिटी डाल दी दिल्ली, पिन कोड डाल दिए और फिर मैं इसके मोबाइल नंबर डाल देता हूं। तो फ्रेंड्स आपको इसी तरह से लिस्ट को आगे से आगे बनाते रहना है जहां तक आपको रिक्वायर्ड हो। सारी लिस्ट बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको नीचे जो ओके बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप पहले देख पा रहे होंगे कि आपके मेल मर्ज के सारे ऑप्शन अभी आपको बंद लग रहे होंगे, ये आपके सारे फ्रेंड्स बंद ही होंगे क्योंकि जब तक इसको एड्रेस की लिस्ट नहीं मिलती ये सारे ऑप्शन आपके पास बंद मिलेंगे आपको। तो जैसे मैं ओके के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे को पूछेगा कि आपने जो भी लिस्ट बनाई उसको आपको कहां पे सेव करना है। तो मैं इसको सेव करूंगा डॉक्यूमेंट के अंदर। ये आपको लिस्ट को सेव करके रखना है ताकि आपको फ्यूचर में जब भी आप लेटर को बनाओगे तो आपको बार बार उस लिस्ट को टाइप नहीं करना पड़े। आप यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर जाकर उस लिस्ट को सेलेक्ट कर लोगे तो आपको टाइप करने की बार बार जो लिस्ट को लिखने की जो मेहनत होगी वो नहीं करनी पड़ेगी। मैं इसको लिस्ट को सेव कर रहा हूं, न्यू एड्रेस लिस्ट 2019 के नाम से। जैसे मैं सेव बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो आपके मेल मर्ज के जो ऑप्शन जो बंद है अभी वो आपके सारे ओपन हो जाएंगे। तो ये जब तक इसको एड्रेस की लिस्ट नहीं मिलती तब तक ये सारे ऑप्शन बंद रहते हैं और जैसे इसको एड्रेस की लिस्ट मिल जाती है ये सारे ऑप्शन आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, चालू हो जाएंगे। तो चलिए हमारा थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया स्टार्ट मेल मर्ज, सेकंड था सेलेक्ट रिसिपेंट, थर्ड स्टेप है हमारा एडिट रिसिपेंट लिस्ट। जैसे मैं एडिट रिसिपेंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने एक लिस्ट खुल जाती है जो मैंने लिस्ट अभी बनाई थी। एडिट रिसिपेंट लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने जो लिस्ट बनाई है उसको मॉडिफाई करना, चेंज करना, कोई नाम आपको जोड़ना है, हटाना है, डिलीट करना है, तो कुछ भी चेंजेस आपको मॉडिफिकेशन करने हैं वो आपको एडिट रिसिपेंट लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। जैसे मेरे को कोई नाम ऐड करना है या कोई नाम गलत हो गया मेरे को चेंज करना है उसको, तो नीचे लिखा हुआ डेटा सोर्स आप इसके ऊपर क्लिक करिए और नीचे दिया हुआ एडिट। जैसे आप एडिट करोगे तो आपकी लिस्ट वापस सामने खुल जाएगी। अब जो भी नाम आपको नहीं चाहिए, हटाना है या जो भी मॉडिफिकेशन आपको करना है आप इसमें करके ओके के प्रेस कर लीजिए, कंफर्मेशन मांगेगा आप यस कर लीजिए, वापस आपके लिस्ट पे लेके आ जाएगा। मॉडिफिकेशन होने के बाद आप इस लिस्ट को ओके करके बंद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो इसका मेल मर्ज का थर्ड स्टेप। चलिए हम फोर्थ स्टेप की तरफ और चलते हैं। फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड के अंदर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखेंगे जैसे नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर। जी हाँ, ये वही लिस्ट है, अपने कह सकते हैं वही जो टाइटल है जो हमने लिस्ट के अंदर दिए थे, जो मेरे को चाहिए थे लिस्ट बनाते टाइम। तो ये टाइटल आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा है क्योंकि इन टाइटल को आपको लेटर में उस जगह पे ले जाकर रखना है जहां पे आपको जो चीज रिक्वायर्ड है। जैसे मेरे को नेम कहाँ पे चाहिए, मेरे को लेटर के सबसे शुरुआत में नेम, उसका नेम आना चाहिए पर्सन का, तो मैंने नेम के ऊपर ले जाके क्लिक करा। फिर मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो नीचे नेम के नीचे मेरे को एड्रेस आना चाहिए, मैंने एंटर प्रेस किया, एंटर सिटी आना चाहिए, उसके नीचे पिन कोड आना चाहिए, उसके नीचे मोबाइल नंबर आना चाहिए। तो ये सारा मेरे को फॉर्मेट है, तो मेरे को कुछ इसी फॉर्मेट में मेरे को इनको जमाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड से सारे नेम्स को और सारी लिस्ट को जो भी आपके पास होगी। तो फिर मैंने सबको मर्ज फील्ड को सेलेक्ट करा, होम में गया, इनकी साइज बड़ी कर दी, बोल्ड कर दिया इनको, और जो इनका पैराग्राफ स्पेसिंग और जो लाइन स्पेसिंग है वो मैंने बिल्कुल ही हटा दिया। अब आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है आप यहाँ पे पहले कर लीजिए। इसका फॉर्मेटिंग करने के बाद ये था हमारा फोर्थ स्टेप, चौथा स्टेप। अब चौथे स्टेप के बाद हमारा जो पांचवा स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, वो है प्रीव्यू रिजल्ट। जैसे मैं प्रीव्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूं तो आपने जो इंसर्ट मर्ज फील्ड से जो नेम, एड्रेस वगैरह लिखा था, इंसर्ट करा था, उसको ये चेंज करके जो एक्चुअल में जो नाम होगा, मोहन है, जैसे हाउसिंग बोर्ड एड्रेस है,
सिटी है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, उसको लेके आ जाएगा लिस्ट के अंदर से। तो इंसर्ट मर्ज फील्ड सिंपली करता क्या है, एक तरह का लिंक है जो आपके लिस्ट में से उसकी डिटेल्स को लाकर यहाँ पे रख देगा, जो जिस भी फॉर्मेट में आप उसको रखेंगे। तो प्रीव्यू रिजल्ट ये सिर्फ पहला नाम बता रहा है। अगर आपको आगे वाले नाम देखने हैं तो आगे आपके देखो 1 लिखा होगा, इस पे नेक्स्ट पे आप क्लिक करते रहिए तो आपको आगे से आगे नाम बता देगा, वापस प्रीवियस करोगे तो पिछले नाम बता देगा। तो फ्रेंड्स आपने जैसे देख रहे होंगे तो सिर्फ जो नेम है मेरे वो सिर्फ वो चेंज हो रहे हैं, बाकी नीचे का जो मटेरियल है, जो डेटा है उसका, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स तो मेल मर्ज का इंसर्ट मर्ज फील्ड क्या करता है, सिर्फ उसके लिस्ट को चेंज करता है, बाकी किसी को चेंज नहीं करता। प्रीव्यू रिजल्ट को मैंने बंद कर दिया और मेरा जो लास्ट और जो फाइनल स्टेप है, 6th स्टेप, जिससे मेरा मेल मर्ज की प्रोसेस जो कंप्लीट हो जाएगी, वो है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज के अंदर मेरे को 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला होता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है प्रिंट डॉक्यूमेंट और तीसरा होता है सेंड ईमेल मैसेज। तो फ्रेंड्स मैं आपको इन तीनों ऑप्शन के मतलब बता देता हूं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये क्या करेगा, आपने जितने भी नाम की लिस्ट बनाई है उन नाम की लिस्ट के अनुसार आपके जितने भी लेटर बनेंगे वो आपको सारे के सारे लेटर्स को एक अलग फाइल के अंदर प्रिपेयर करके आपको दे देगा, एक न्यू फाइल बनाकर। ये करेगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। सेकंड ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है प्रिंट कर देगा, तो आपके जितने भी लेटर होंगे वो डायरेक्टली प्रिंट आउट के थ्रू, प्रिंटर के थ्रू आपको प्रिंट करके दे देगा। और तीसरा है सेंड ईमेल मैसेज। अगर आप कोई ईमेल बना रहे हो तो उसको ये ईमेल के जरिए आपको सेंड भी कर देगा, वो करेगा ईमेल मैसेज। तो चलिए हम करते हैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये पूछ रहा है मेरे को क्या आपको सारे के सारे लेटर्स को एक अलग फाइल के अंदर चाहिए, तो मैंने कर लिया ओके। तो इसने क्या करा, मेरे को लेटर 1 नाम की एक फाइल बना के दे दी, जो कि न्यू फाइल है मेरे लिए, और उसके अंदर जितने मैंने लिस्ट बनाई थी, जितने पर्सन की मैंने लिस्ट बना के रखी थी, उतने लेटर मेरे को बना के दे दिया। जैसे 1, 2 और मेरे पास 3 नाम थे तो इसने 3 लिस्ट बना के दे दी। जहां पे आप नीचे पेज नंबर के तौर पे देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ पेजेस 3 बता रहा है। तो फ्रेंड्स इसने करा क्या है, सिर्फ नेम चेंज करा, बाकी का जो मटेरियल है वो एज इट इज है, वो सारे के सारे लेटर्स में सेम है। तो ये आपका काम करता है मेल मर्ज फीचर्स। अगर आप चाहते हो मेरे को इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी, कुछ फॉर्मेटिंग करनी, तो मैं मेरी जो नई फाइल बनी है 3 लेटर वाली, उसको मैं बंद कर लेता हूं और डोंट सेव। अब करता क्या हूं, जो भी आपको फॉर्मेटिंग डिजाइनिंग वाली करनी है तो आप अपनी सिंपल जो मेन फाइल है आप उसी के अंदर करिए। जो आपकी फाइल प्रिपेयर होती है, जो मेल मर्ज बना के देता है, आप उसके अंदर कोई एडिटिंग मत करिए। ऐसा क्यों होता है अभी आप देख लीजिए आगे। तो मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। जैसे मैंने पेज बॉर्डर के अंदर गया और मैंने इसको एक पेज की बॉर्डर दे दी अपने हिसाब से, ओके कर लिया। क्या हुआ, पेज बॉर्डर नहीं आई, पेज बॉर्डर बॉक्स के ऊपर लिया, ओके कर लिया। तो जैसे इसकी पेज की बॉर्डर दे दी, मेरे को एक कंपनी का लोगो लगाना है, तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पर कोई पिक्चर लेकर उसको एक कंपनी का लोगो मानकर उसको लगा लिया। पिक्चर को छोटा करा, व्रैप टेक्स्ट में जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करके छोटा कर लिया। मैंने पिक्चर का लोगो भी सेट कर लिया। अब लोगो सेट करने के बाद आपको कोई वाटरमार्क वगैरह कुछ सेट करना है तो आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने सैंपल के रूप में कर लिया, वाटरमार्क के ऊपर गया, वाटरमार्क का ऑप्शन ओपन होके मैंने